قائم نہیں کی گئی، نہ ہی صوبائی حکومت کی طرف سے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے. تو نہ کوئی نیا قانون، نہ کوئی نئی عدالت. پاکستان کے مروجہ قوانین اور عدالتوں کی موجودگی میں اس تخریبی افریط سے انشاءاللہ ہم نمٹیں گے. اور پاکستان کو اور بہت چیلنجز درکار اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ہمارے سامنے خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارا جو ہمسایہ، مشرقی ہمسایہ ہے، اس کا چیلنج ہے. پاکستان کے مغرب میں چیلنجز ہیں. جو نئی جیو پالیٹکس ہے اس کے چیلنجز ہیں. لیکن منتخب حکومت، دفاعی ادارے اس پر مکمل طور پر پرعزم ہے کہ یہ جو اندرونی تخریب کاری ہوئی ہے یہ انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگی، اور پاکستان بطور ایک جمہوریہ کے، ایک آئینی مملکت کے آگے بڑھے گا. اس سال کے آخر میں انتخابات متوقع ہیں. پاکستان کے عوام ایک صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات میں اپنی صوبائی اور وفاقی حکومت کا انتخاب کریں گے. جو معاشی چیلنجز ہیں ان سے ہم نمٹ رہے ہیں، مزید نمٹیں گے آنے والے دنوں میں، تاکہ ہم یہ جو تخریب کاری 9 اور 10 مئی کو ہوئی ہے اس کو ماضی کا حصہ بنا کر اس سے درست سبق سیکھ کر انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں گے. بہت شکریہ جی. نو کوشچنز تو وی آر ڈن. خرم صاحب، جی کوشچن یہ ہے کہ آپ روزانہ آتے ہیں، پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں، انرجی سیکٹر اس ملک کی مسائل کا جڑ ہے. تو ایک تو یہ کوشچن بھی لے لیں اور گلا بھی لے لیں کہ آپ انرجی کے جو رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی میٹ اپ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے کچھ کر دیں، کیونکہ ایک سال میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ ہوا ہے. ایک یہ. دوسرا کوشچن یہ ہے سر کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ رواں سال ان کو 150 ارب روپے کی سبسڈی ملی ہے، وہ یکساں ٹیرف پالیسی کے تحت ملی ہے کہ وہاں کے صارفین کو ریلیف ملے. تو کب تک یہ لاڈلا بچہ رہے گا کہ ایک جانب وہ اپنی جو بجلی پیدا کرتے ہیں 40 روپے فی یونٹ، اور سی سی پی اے سے جو لیتے ہیں 1100 میگا واٹ وہ 10 روپے لیتے ہیں. تو کب تک یہ مسائل ٹیکل ہوں گے اور یہ انرجی سیکٹر آگے بڑھے جی، گا؟ اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم ہے. پچھلے، اگر آپ کا سوال میں سمجھ پایا ہوں، کہ کم از کم بجلی کے جو معاملات ہیں ان میں ایک بہت نمایاں بہتری آئی ہے، جس میں ہم نے 2000 میگا واٹ صرف تھر کے کوئلے سے بننے والی نئی بجلی، پاکستانی بجلی، سستی بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے. ہم نے K3 کا جو جوہری پلانٹ ہے اس کی 1100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سستی بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے. ہم نے جو کروٹ الیکٹرک پاور ہے پچھلے سال میں اس کا افتتاح کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے، 725 میگا واٹ، وہ بجلی، پاکستانی بجلی، سستی بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع میں تو پچھلے سال ہم نے بجلی کی قیمت بڑھائی، کیونکہ عمران خان نے اس سے پہلے جو 2 سال تھے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا. لیکن ستمبر 2022 کے بعد بجلی کے بیس ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اکتوبر سے لے کر مارچ تک ہم نے صارفین کو جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ان کے بلوں میں کمی ہوئی، مائنس تھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، وہ بھی ہم نے صارفین کو یہ ایڈوانٹیج پے کیا ہے. اور اس کے بعد سے جو تمام بجلی کے منصوبے، جس طرح شنگھائی الیکٹرک جس کا میں نے ذکر کیا تھر کول کے حوالے سے، جو سی پیک کے منصوبے تھے وہ دوبارہ سے چالو کر دیے ہیں. تھر کول سے جو بجلی بنانے والی بجلی تھی اس کو جو سسٹم میں لے کر آنا تھا وہ ریکارڈ مدت میں الحمدللہ پچھلے 2.5 ماہ میں ہم نے 220 کلومیٹر کی تھر مٹیاری ٹرانسمیشن لائن مکمل کر کے چلا دی ہے. وہ چل رہی ہے اس وقت الحمدللہ. اسی طرح ملک کے انتہائی جنوب میں گوادر شہر کو جو بجلی کی کمی تھی وہ ایران سے، وہ بھی چند ماہ میں جو ٹرانسمیشن لائن مکمل کر کے گوادر کو 100 میگا واٹ کی بجلی فراہم کر دی گئی ہے، وہ چل پڑی ہے لائن. اور بہت سارے جو ٹرانسمیشن کے منصوبے تھے وہ اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہیں.
दियामीर भाषा और दासू की जो तामीर है वो तेज़ी से जारी है। जो सोलर हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि आज उसकी डेडलाइन ख़त्म हुई है, तो उसमें भी जो पेशरफ्त है उससे भी हम आगाह करेंगे। तो बिजली के महकमे में तो हमने जो इस कलील मुद्दत में जो पिछली रुकावटें थी वो दूर करके प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके चला दिया है। ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स, जनरेशन के प्रोजेक्ट्स। अगला चैलेंज जो बजा तौर पे सब सार्फिन के सामने है, बशमूल मेरे, मैं भी एक सारिफ हूँ, कि हमें बिजली की कीमत कैसे कम करनी है। तो उसमें इंशाल्लाह आने वाले सालों में जो हाइडल के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो सोलर के प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह ऑनलाइन आएंगे, वो बिजली की कीमत को कम करने में हमारे मुआविन होंगे। बिजली में बहुत जो पूरा नेटवर्क है उसमें काम होने वाला है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अंदर बहुत बेहतरी लानी है। लेकिन पिछला जो अप्रैल 2022 से लेकर अब तक तो हमने बहुत बड़ी पेशरफ्त कर ली है। कराची इलेक्ट्रिक का इशू बहरहाल मौजूद है, क्योंकि मुल्क के तमाम सार्फिन को बराबर ट्रीट करने के लिए ये इक्वल टैरिफ पॉलिसी का इस वक्त नफाज है, जिसके ज़रिए असल में बहुत सारे जो ना सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक में बल्कि मुल्क के शमाल में, मगरब में और जनूब में जो बहुत बड़े लॉसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको कवर करने के लिए ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, उस पर हम कारबंद है। क्योंकि के इलेक्ट्रिक के साथ इस वक्त हम ये एक और पुराना मसला है जिसको इंशाल्लाह हल करने जा रहे हैं कि हम हतमी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के साथ कैसे मामला आगे चलेगा। तो ये जो इक्वल टैरिफ पॉलिसी है जिसका फ़ायदा के इलेक्ट्रिक को और कराची के सार्फिन को असल में तो उनको बाकी मुल्क के जो बराबर बिजली की कीमत जो है वो फराहम की जाती है। तो हमें बहरहाल के इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी ज़रूर है, लेकिन कराची के शहरी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनकी फलाह भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, जिस पर हम कारबंद हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो के इलेक्ट्रिक के साथ हतमी मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि के इलेक्ट्रिक को वो तरगीब दी जाए कि वो अपनी जो जनरेशन कॉस्ट है बिजली बनाने की उसमें कमी लाएं, ताकि ये जो हमें सब्सिडी देनी पड़ती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल कीमत करने के लिए, वो हमें कम करनी पड़े। सर ये बता दीजिए कि इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है और यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद है जो कि अब घर बैठ जाएगी। मुस्लिम लीग नून उनको अप्रोच करेगी किसी तरीके से? पहली बात तो ये। दूसरा ये बता दीजिए अगर ऐसा नहीं होता, नई सियासी जमात की बाज़गश्त है, क्या कोई उस हवाले से भी कोई इत्तेहाद, कोई इस हवाले से मामला था? देखिए, जो तो मुस्लिम लीग नून की सियासी पॉलिसी है वो मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान बेहतर तौर पे चीफ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, पार्टियों के सदूर मौजूद। इस वक्त हमारा फोकस बतौर हुकूमत के यही है कि 2018 के इंतखाबात में जिसमें बदतरीन धांधली हुई, पोलिंग से पहले, पोलिंग के दौरान, पोलिंग के बाद गैर आइनी मुदाखलत हुई, 2023 के इंतखाबात में ये नहीं होगा। जो हमवार मैदान, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों को प्रोवाइड करना है, वो इंशाल्लाह लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और हम सब का फ़ायदा और मकसद एक ही नतीजे में पिन्हा है कि पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो लसबेला में हैं, चाहे वो घोटकी में हैं, चाहे वो रहीम यार खान में हैं, चाहे वो मर्दान में हैं, चाहे आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, उन सब का जो अमल है राय देने का, वोट डालने का, उसका तकद्दुस हमने कायम करना है कि जिसको वोट डालेंगे वही वोट निकलेगा, वही वोट गिना जाएगा, उसी तरह गिना जाएगा, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक नई सूबाई और वफाकी हुकूमतें कायम हो जाएंगी। अगर वोटिंग का तकद्दुस कायम हो जाता है तो ये बहुत बड़ी फतह होगी 76 साल पाकिस्तान बनने के बाद। रवा सीजन में मौसम ने आपका बड़ा साथ दिया है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो उतनी नहीं फेस करनी पड़ी आवाम को, लेकिन उसके बावजूद भी 4-5 घंटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा, आपसे पिछली बार भी हमने कहा था कि डाटा ऑफिशियली काइंडली इसका शेयर कर दिया करें। आपने PRO आपकी बड़ी देर से लगी, वो तो लगा दी आपने, लेकिन अब डाटा आज तक आप
शेयर नहीं करते हैं? जी जी, हम डेटा जो है वो हम शेयर करना शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह। जो सवाल है वो ये है कि हमारे सामने एक और जिम्मेदारी भी है, और वो ये है कि सार्फिन के बिजली के बिलों को हमें कम से कम रखना है। तो लिहाजा जो महंगे प्लांट हैं, जो तेल से चलते हैं या फर्नेस ऑयल से डीजल से चलते हैं, उनकी जनरेशन को हम कम से कम रखा जाता है ताकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मिनिमाइज किया जा सके। इसीलिए आप कह रहे हैं कि जी बड़े शहरों में 2 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग की इस वक्त पॉलिसी नहीं है। तो लिहाजा जहाँ भी अगर कोई इस वक्त लोड शेडिंग है वो 2 वजूहात की बुनियाद पर है। एक तो ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मिनिमाइज किया जा रहा है, या उन इलाकों में है जहाँ बिजली के बिलों की बाजियाबी या जो लॉसेस हैं, नुकसानात हैं, ट्रांसमिशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा हैं। वहीं ये इस वक्त हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले साल का हमें एक तजर्बा हुआ था, जिसके नतीजे में अब कोशिश यही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मिनिमाइज़ किया जाए। उसका ये भी हमें अल्लाह ताला के करम से जो मौसम का एडवांटेज है वो ये हुआ है कि मार्च, अप्रैल और मई में जो हमें मौसम की वजह से फर्नेस ऑयल के प्लांट चलाने थे वो हमने नहीं चलाए और उसको मिनिमाइज रखा है। अभी जून में ज़ाहिर है एक गर्मी के और 6 हफ्ते मौजूद हैं, इससे पहले कि बारिशों के बाद हाइडल जो है वो फुल अपनी कैपेसिटी में चल जाए। तो उसके लिए हमें कुछ फर्नेस ऑयल के प्लांट्स चलाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बचत पाकिस्तान के अवाम की हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह रोज़